Hello and thank you for visiting EP classes for NEET UG, MBBS and NEET PG. This is lecture 2 on the chapter Biological Classification, and in this lecture we'll be discussing kingdom MONERA. And in kingdom MONERA, these are the topics we'll be focusing on today. So pay attention, make notes and enjoy the video. So let's get started. So kingdom MONERA. As we discussed in the previous video, kingdom MONERA includes prokaryotes. And prokaryotes में there is no true nucleus. Their DNA, or you say their nuclear material, is not enclosed within any nuclear membrane. कोई membrane नहीं है DNA के around. The term prokaryota means before a nucleus. Pro मतलब before, karyota मतलब nucleus. So before a nucleus, prokaryota. Prokaryotes में single envelope organization है. Single envelope मतलब खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए सिंगल एनवेलोप organization. And we also know that in prokaryotes, ribosomes 70S हैं etc. प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल डिस्कशन चैप्टर सेल में होगा. इन शॉर्ट काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स का या इन मोनेरेंस का. किंगडम मोनेरा में हमें टू मेन ग्रुप्स पढ़ने हैं. Eubacteria, which are also called true bacteria, and archaebacteria. They are the ancient bacteria. Eubacteria में further two types हैं, bacteria or cyanobacteria. Cyanobacteria are also called blue-green algae. उसके बाद कुछ और ग्रुप्स मोनेरा के हैं, mycoplasma, actinomycetes और rickettsia. इन्हें हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे. मेन हमारा फोकस रहेगा यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया पे. सो लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया जिसका सिंगुलर है बैक्टीरियम. बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लिवेनहुक एंड बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस मतलब दे अकर ऑलमोस्ट anywhere and everywhere, in water, in air, in soil, in animals, on animals, except volcanic pits में, mountain tops पे यहाँ बैक्टीरिया नहीं होते. हाँ, आर्किबैक्टीरिया हो सकते हैं as they can withstand the hostile conditions. The reason for that we'll see when we'll discuss archaebacteria in a while. सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की शेप की. तो बैक्टीरिया में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है जिसकी कंपोजिशन हम अभी इसके बाद देखेंगे, तो इस सेल वॉल की वजह से कुछ शेप होती है बैक्टीरिया की. शेप्स जैसे कॉकस जिसका प्लूरल है कॉक्साई. So the coccus shape is somewhat spherical. कई दफ़ा students say that coccus is circular, which is wrong. अब 3D में बात कर रहे हैं, so it is spherical, not circular. Spherical or ovoid you can say. Now this coccus may exist singly. Then you call it micrococcus or monococcus. It can occur in pairs. At that time, you call it diplococcus. In tetrads, मतलब group of 4, and you call it
Tetracoccus. If it forms a chain, you call it Streptococcus. When cocci are 8 or a little more in number and form a cube, we call it Sarcina. And if we have a number of cocci in a cluster, then we call it Staphylococcus. ओके, एक और शेप है बैक्टीरिया की बैसिलस, जिसका प्लूरल है बैसिलाई. Bacillus bacteria are rod shaped or cylindrical. They are rod shaped or cylindrical. Again, if present singly, we simply call it bacillus. In pairs, we call it diplobacillus. When connected end to end, जिसको आप चेन कहते हो, तो जब इन चेन्स हों, then you call it streptobacillus. When stacked, मतलब एक के ऊपर एक, then we say it is palisade bacillus. Don't get confused with streptobacillus and palisade bacillus. Streptobacillus में bacilli end to end connected होते हैं, और palisade bacillus में एक bacillus के ऊपर दूसरा bacillus. एक और शेप है spirillum. नाम से ही पता लगता है that the bacterium is spiral in shape. Spirillum बैक्टीरिया के एक या दोनों एंड्स पे दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला. जैसे यहाँ पे हम ढेर सारे फ्लैजिला देख रहे हैं, तो ये फ्लैजिला एक या दोनों एंड्स पे होंगे स्पाइरलम शेप में. इसके बाद एक और शेप है विब्रियो. These bacteria are rod shaped with a single curve. So you can also say that they are C-shaped or comma-shaped. Vibrio bacteria have one or more flagella at one pole. यहाँ खाली एक पोल पे फ्लैजिलम या फ्लैजिला होंगे. यहाँ पे इस फिगर में खाली एक फ्लैजिलम है और खाली एक पोल पे ही होंगे फ्लैजिलम. ओके, इसके बाद है एक और शेप बैक्टीरिया की स्टॉक्ड. स्टॉक्ड शेप में द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम हैज़ अ स्टॉक. यहाँ पे आपको ये स्टॉक दिख रहा है इस स्टॉक्ड शेप में. ओके, एक और शेप है बडेड. यहाँ बैक्टीरियम की बॉडी एट प्लेसेस स्वोलन होगी. जैसे यहाँ पे ये स्वोलन रीजन्स, तो इस शेप को बडेड कहेंगे. ये तो हो गई बात बैक्टीरिया की शेप की. अब बात करते हैं फ्लैजिलेशन की. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट, और ये फ्लैजिला कैसे अटैच्ड हैं बैक्टीरियम की बॉडी के साथ, इन बेसिस पे फॉलोइंग टाइप्स हैं बैक्टीरिया की. तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं मोनोट्राइकस फ्लैजिलेशन की. जब एक सिंगल फ्लैजिलम अटैच हो एक एंड के साथ, दैट कंडीशन इज मोनोट्राइकस फ्लैजिलेशन. जब एक रिमेंबर सिंगल फ्लैजिलम अटैच हो दो एंड्स पे, एक एंड पे एक और दूसरे एंड पे एक, दैट फ्लैजिलेशन इज amphitrachous flagellation. And when a group of flagella are attached to one end only, that condition is called cephalotrichous flagellation. Okay.
और जब अ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला अटैच्ड हों दो एंड्स पे, एक एंड पे एक ग्रुप, दूसरे एंड पे एक और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, then it is called Lophotrichus flagellation. And then there is Peritrichus flagellation. इसमें flagella अटैच होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, और फिर एट्राइकस में flagella एब्सेंट होते हैं। तो अभी तक हमने बस बात की बैक्टीरिया की शेप्स की और फ्लैजेला की बेसिस पे थोड़ा डिवाइड किया बैक्टीरिया को। अब हम बात करेंगे एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की। सो पे अटेंशन, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है एंड वेरी ऑफन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड इन, बाहर से शुरू होके हम अंदर की तरफ आते हैं। तो सबसे बाहर हम देखेंगे द स्लाइम एंड द कैप्सूल। तो स्लाइम is the substance secreted by the bacterium itself and deposited over the cell wall in the form of a loose gelatinous sheath, gelatinous या mucilaginous sheath. ये slime, it is usually composed of polysaccharides, and in case of some virulent bacteria, virulent या you say disease causing bacteria, amino acids are also present, and due to these amino acids the slime layer becomes thick and is then called capsule. This capsule provides protection to these virulent bacteria against antibodies of the host. Okay, moving inwards. Moving inwards and we see the cell wall. इससे पहले भी बात की थी हमने कि सेल वॉल की वजह से ही शेप होती है। माइकोप्लाज्मा में हम देखेंगे कि वो काफ़ी इरेगुलर होते हैं, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती माइकोप्लाज्मा में। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। तो सेल वॉल इज द आउटर रिजिड covering of the cell which provides shape, protection and keeps the cell from bursting due to osmotic changes. ये जो function है keeps the cell from bursting due to osmotic changes, ये सबसे important function है इस cell wall का। हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन। सेल वॉल एक्टिव मतलब दे टारगेट द सेल वॉल। ये एंटीबायोटिक्स सेल वॉल नहीं बनने देते, डॉटर बैक्टीरियम का सेल वॉल नहीं बनने देते। मान लो हमारी बॉडी में एक मैच्योर बैक्टीरियम है जिसका सेल वॉल भी पूरी तरह बना हुआ है। इस मैच्योर बैक्टीरियम के सेल वॉल पे कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा इन एंटीबायोटिक्स का, बट जब ये बैक्टीरियम डिवाइड करेगा तो डॉटर बैक्टीरियम के सेल वॉल नहीं बनने देगा ये सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक। डॉटर बैक्टीरियम का सेल वॉल नहीं बनने देते हैं ये एंटीबायोटिक्स। एंड रिमेंबर, बैक्टीरिया जब हमारी या किसी एनिमल की बॉडी में होते हैं तो द इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियम इज हाइपरऑस्मोटिक,
compared to the outside medium. So end osmosis start होगी, मतलब water will move from outside medium which is hypoosmotic to inside of the bacterium which is hyperosmotic, जिससे बैक्टीरियम स्वेल करना स्टार्ट कर देगा. एंड टू कीप दिस स्वेलिंग इन चेक सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है. अब जब इन डॉटर बैक्टीरियम में इन सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स ने सेल वॉल बनने ही नहीं दिया, तो द बैक्टीरियम इवेंचुअली डाइज ऑफ ऑस्मोटिक बर्स्ट. तो आप याद रखोगे कि सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरियम की डेथ नहीं होती. डेथ बैक्टीरियम की यहाँ ऑस्मोटिक बर्स्ट की वजह से होती है. इसीलिए वी सेड दैट दिस फंक्शन टू कीप द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक चेंजेस, ये जो फंक्शन है सेल वॉल का, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है. नाउ कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ दिस bacterial cell wall. So the bacterial cell wall is made of a polymer called peptidoglycan. Peptidoglycan में पेप्टाइड्स हैं जो अमाइनो एसिड से बनते हैं. ग्लाइकन है जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है. और पेप्टिडोग्लाइकन में ये पेप्टाइड्स और ग्लाइकन्स, इनकी अरेंजमेंट और लिंकेज कुछ इस तरह है. तो पहले बात करते हैं ग्लाइकन की, जो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट से बनता है. तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास NAM और NAG. NAM is N-acetyl muramic acid और NAG N-acetyl glucosamine. और यहाँ NAM अटैच्ड है NAG के साथ. फिर NAG कार्बोहाइड्रेट फर्दर अटैच्ड है NAM के साथ, जो आगे अटैच्ड है NAG के साथ, एंड सो ऑन. और ये इंटरबॉन्डेड NAM NAG बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकन. नाउ NAM के साथ साइड चेन या पेप्टाइड चेन होती है. ये साइड चेन, ये साइड चेन. ये पेप्टाइड चेन 4 या 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनी होती है. तो जहाँ NAM होंगे, उन NAM के साथ पेप्टाइड साइड चेन होंगी. ओके. अब कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक पेप्टाइड साइड चेन को दूसरी पेप्टाइड साइड चेन से अटैच करता है. इट एक्चुअली एक्ट्स एज एन एंजाइम. और जो चीज़ एक्चुअल में अटैच करता है इन पेप्टाइड साइड चेन्स को, वो भी एक पेप्टाइड है एंड इज कॉल्ड अ लिंकर पेप्टाइड. एंड द carboxypeptidase, it acts as an enzyme. Okay. और इस तरह से इन लिंकेजेस से एक मेजर पॉलीमर बनता है called peptidoglycan. Now if a question is asked that how many peptidoglycan molecules are there in the cell wall of a bacterium, तो आंसर है only one. पेप्टिडोग्लाइकन एक जायंट, एक बहुत बड़ा पॉलीमर मॉलिक्यूल है. अब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन से ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम पेप्टाइड साइड चेन्स को लिंक नहीं कर पाता. लिंक नहीं कर पाएगा
तो पेप्टिडोग्लाइकन या बोल दो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती। और वैंकोमाइसिन पेप्टाइड साइड चेन्स बनने ही नहीं देता। तो दोनों एंटीबायोटिक्स से सेल वॉल की सिंथेसिस में रुकावटें आती हैं। तो इसीलिए अर्लियर वी सेड दैट दीज आर द सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स। ओके, नाउ सेल वॉल के बाद वी कीप ऑन मूविंग इनवर्ड्स इन द सेल। तो अगला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन स्टेरॉल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं होते इन बैक्टीरिया में। Now this plasma membrane of bacteria, it provides site for most of the metabolic pathways. It has respiratory enzymes bound to its inner surface. Respiratory enzymes bound to its inner surface. And it provides site for most of the metabolic pathways. Say we talk of the metabolic pathway of respiration. और हमारे फिजियोलॉजी के चैप्टर रेस्पिरेशन में हम देखेंगे दैट रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। से वी टॉक ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कीप इन माइंड बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, तो ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है एंड वी डिडंट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन फॉर दैट। उसके बाद क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। यूकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। And bacteria, being prokaryotic, has no mitochondria. तो Krebs cycle cytoplasm में होगा in bacteria. Krebs cycle के बाद ETC, electron transport chain. ये ETC प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। यूकैरियोट्स में ये ETC प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। अब बैक्टीरिया में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो ये ETC प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी जिसके एंजाइम्स भी बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे होते हैं। So here now, as we are talking of plasma membrane, there are some structures associated with it. So we'll talk of these structures associated with plasma membrane. तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेसोसोम्स की। तो ये मेसोसोम्स, these are plasma membrane infoldings. ये मेसोसोम, mesosomes increase the overall surface area of plasma membrane. Mesosomes also help in septa formation during cell divisions, and mesosomes help in the separation of replicated nucleoid. Okay, तो ये था मेसोसोम।
इसके बाद एक और स्ट्रक्चर फ्लैजेला, और अगर एक ही है तो फ्लैजेलम। दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिलिटी, या मूवमेंट या मोशन कह दो। बैक्टीरिया में a flagellum is composed of a globular protein called flagellin. Bacterial flagellum में ये globular flagellin proteins helically arrange हुए होते हैं along an axis. Flagellum attach हुआ होता है to a structure called hook, और ये hook attach हुआ होता है bacterial basal body के साथ. Now remember, यूकैरियोटिक बेसल बॉडी बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, जहाँ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+0 अरेंजमेंट में होंगे. We'll discuss that when we get to that. बट अभी यहाँ बैक्टीरियल बेसल बॉडी में रॉड और रिंग्स होती हैं. बैक्टीरियल बेसल बॉडी में यहाँ पे हमारे पास रॉड है और ये कुछ रिंग्स होती हैं. रिंग्स जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एम रिंग, ये एस रिंग, पी रिंग, और इसी तरह से ये एल रिंग. ये रॉड एंड दीज रिंग्स आर एम्बेडेड इन द सेल एनवेलप. सेल एनवेलप में यहाँ सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी. ओके, तो ये था बैक्टीरियल फ्लैजेलम. नाउ आई ऑल्सो वांट यू टू रिमेंबर दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एल और ये पी रिंग्स नहीं होती, खाली एस और एम रिंग्स होती हैं. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में खाली 2 रिंग्स होंगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स प्रेजेंट होंगी. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में खाली 2 रिंग्स और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स प्रेजेंट होंगी. नाउ एक और स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पाइली और फिम्ब्रे, और अगर एक ही है तो पाइलस. These pili are minute hair-like appendages. Hair-like appendages. They are made of helically arranged protein subunits called pilin. Pilin protein के ये pili बने हुए होते हैं. And these pilin proteins are helically arranged along an axis. Okay. Now these pili, they do not aid in motion, but they help bacteria in attachment. Sex pili भी pili होते हैं जो एक तो हेल्प करते हैं एक बैक्टीरियम को दूसरे बैक्टीरियम के साथ अटैच होने में, और एक कनाल बनाते हैं जिसके थ्रू डीएनए पास होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, और इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं. तो ये थे सम स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनवर्ड्स जब हम जाते हैं तो वी कम अक्रॉस साइटोप्लाज्म. तो ये साइटोप्लाज्म एक एक्वस फ्लूइड और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस या बोल दो मैट्रिक्स है, जिसमें आप पाओगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा. ये साइटोप्लाज्म
ग्रैन्युलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स सिंगली हो सकते हैं और इन स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स में इन राइबोसोम्स को होल्ड किया हुआ होता है mRNA या मैसेंजर आरएनए ने। पॉलीराइबोसोम्स पे एक्चुअली ट्रांसलेशन हो रही होती है जेनेटिक कोड की, जो ये mRNA डीएनए से लेके आया होता है। राइबोसोम्स बैक्टीरिया के 70S होते हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम्स एट्सेट्रा नहीं होते। बट रिमेंबर, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन gives rise to वेसिकुलर thylakoids, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक बैक्टीरियोक्लोरोफिल हम देखेंगे और जहां फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, नाउ एक और स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये जिसे आप न्यूक्लियर बॉडी या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हो। अब जैसा मेम्ब्रेन बाउंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, वैसा प्रोकैरियोट्स में कुछ नहीं होता। यहाँ जो डीएनए है, जिसे नेकेड डीएनए भी कहते हैं, नेकेड इसलिए क्योंकि इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है विद नो फ्री एंड्स, और इसी को न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड विद नो फ्री एंड्स। और ये न्यूक्लियोइड अटैच हुआ होता है टू अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड mesosome, and which we now know is nothing but an infold of plasma membrane. Okay. न्यूक्लियोइड के बाद बात करते हैं प्लाज्मिड्स की। अब बैक्टीरिया में डीएनए खाली न्यूक्लियोइड में नहीं होता। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एक्सेसरी रिंग्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स हैं। ये प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट भी करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोइड। कुछ प्लाज्मिड्स टेम्पोरेरीली एसोसिएट हो जाते हैं न्यूक्लियोइड के साथ। These plasmids then are called episomes. Class 12 में we'll encounter these plasmids again, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स को यूज़ करते हैं एज वेक्टर्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स। ओके, प्लाज्मिड्स दे कैरी नॉन वाइटल जीन्स। नॉन वाइटल इसलिए क्योंकि these genes are not necessary for the survival of the bacteria. These genes may or may not be useful to the bacteria. कुछ यूजफुल जीन्स की एग्जाम्पल हैं जैसे फर्टिलिटी फैक्टर और एफ फैक्टर, ये एक यूजफुल जीन है। इसी तरह से रेजिस्टेंस फैक्टर और आर फैक्टर, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर और कॉल फैक्टर। अब वो प्लाज्मिड जिस पे ये जीन
एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर जीन होगा उसे एफ प्लाज्मिड कहेंगे। लाइकवाइज जिस प्लाज्मिड पे आर फैक्टर जीन होगा उसे आर प्लाज्मिड, जिस पे कॉल फैक्टर जीन उसे कॉल प्लाज्मिड। A bacterium having F plasmid is called male or donor bacterium. This male or donor bacterium develops sex pili for conjugation with female or say recipient bacterium which has no F factor plasmid. इसलिए यहाँ मेल को F प्लस और फीमेल बैक्टीरियम को F माइनस बैक्टीरियम भी कहते हैं। आर प्लाज्मिड के पास जीन होता है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड, कॉल प्लाज्मिड जिनमें वी सेड कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर या जीन है। ये कॉल फैक्टर्स टॉक्सिन्स कॉल्ड कॉलिसिन्स और बैक्टीरियोसिन बनाते हैं जो कि लीथल होते हैं आसपास अगर कोई और बैक्टीरिया हो, टू रिड्यूस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज।